से फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? तो प्रभुपाद जी ने बोला था ये सॉन्ग, ठीक है। तो आप लोग सुनेंगे तो इसमें से बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हम सबके लिए है। तो सब लोग गाइएगा, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। वॉइस को डिवोटीज एक्चुअली अटेंड करना चाहिए, किसी को असुविधा है तो अलग बात है, लेकिन बाकी जितने भी वॉइस के डिवोटीज हैं they should also attend. Today is Sunday, I think they have time. Hari Hari Bifale Hari Hari Bifale म्यूट करिए, म्यूट करिए। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानिया सुनि रति न जन्मिल केने, रति न जन्मिल केने, संसार विषानले दिवानिशि हिया जले, संसार विषानले, सब लोग गाइए, दिवानिशि हिया जले, संसार विषानले दिवानिशि हिया जले, संसार विषानले दिवानिशि हिया जले, जुराइते न कोइनु पाय, जुराइते न कोइनु पाय, जुराइते न कोइनु पाय, जुराइते न कोइनु। ब्रजेन्द्र नंदन जे शची सुत हईल से, 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 बलराम हईल निताई, बलराम हईल निताई, बलराम हईल निताई, बलराम हईल निताई, दीनहीन যত ছিল হরি নামে উদ্ধার
ছিল হরি নামে উদ্ধারিল তার সাক্ষী জগাইয়ার মাই তার সাক্ষী জগাইয়ার মাই হা প্রভু नंद सुता ऋषभानु सुता जुत हा प्रभु नंद सुता ऋषभानु सुता जुत करुणा कर हे बार करुणा कर हे करुणा कर हे बार करुणा कर हे नरोत्तम दासे काय ना ठेलियो रंगा पाय नरोत्तम दासे काय ना ठेलियो रंगा पाए तुम बिना के आशया मार तुम बिना के आशया मार तुम बिना के आशया मार तुम बिना के आशया हरि हरि विफले जन्म गणाइनु हरि हरि विफले जन्म गणाइनु हरि हरि विफले हरि हरि विफले जन्म गणाइनु मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भोजिया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भोजिया जानिया सुनिया जानिया सुनिया राजेंद्र नंदन जे शशि सुत इलसे भजेंद्र नंदन जे शशि सुत इलसे बलराम हरिल निताय बलराम हरिल निताय बलराम हरिल निताय बलराम हरिल निताय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram. Jaya Rohini Nandana Shri Balaram, Rohini Nandana Shri Balaram, Jaya Rohini Nandana Shri Balaram, Rohini Nandana, Jaya Rohini Nandana Shri Balaram, Rohini Nandana Shri Balaram, Rohini Nandana Shri Balaram. Jai Nityananda Ram, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jai Nityananda Ram, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jai Nityananda Ram, Jai Nityananda Ram, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jai Shri Balaram, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jai Shri Balaram. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Vrindavan Dham, Krishna Balaram, Krishna Balaram. Jai Dwarika Dham, Dwarika Dham, Dwarika Dham, Jai Dwarika Dham, Dwarika Dham, Dwarika Dham. Jaya Rukmini Devi Jaya Dwarikadhish, Rukmini Devi Jaya Dwarikadhish, Rukmini Devi Jaya Dwarikadhish, Rukmini Devi Jaya Dwarikadhish. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Gurudev, 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 Jai Gurudev, Jai Gurudev. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री श्री गौर निताई चंद्र की, श्री श्री कृष्ण बलराम की,
समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवम् श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो मैं आप सबको स्वागत करता हूँ, विशेष करके जो भक्त लोग ऑफलाइन आए हैं, अपना समय निकाल के अपने आध्यात्मिक जीवन में भक्तों का संग को वैल्यू दिया है और अपना शेड्यूल को एडजस्ट किया है। एडजस्ट करके हॉलीडे को हॉलीडे बनाने के लिए आए हैं। तो हॉलीडे हॉलीडे होता है जब हम लोग सत्संग का लाभ उठाते हैं, क्योंकि बाकी दिन में तो हमारा वर्किंग डेज होता है, ऑफिस घर का काम होता है, तो हम लोग ज़्यादा समय या बहुत बहुत ध्यान पूर्वक शांति से हरि कथा हरि नाम का आश्रय नहीं ले पाते हैं। छुट्टी के दिन अगर हम लोग उसका लाभ उठाएंगे तो फिर हमें बहुत आध्यात्मिक लाभ होगा एवं हम लोग भगवान की कृपा प्राप्त होगा। तो इसलिए जो भक्त लोग ऑनलाइन ऑफलाइन आए हैं, विशेष करके मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ऑनलाइन डिवोटीज भी, आप जो लोग आए हैं, बहुत लोग नहीं आए हैं लग रहा है, तो आप थोड़ा आपका अटेंडेंस दीजिएगा। अबीर प्रभु, अभिषेक गुप्ता, 1 साल के बाद अभिषेक प्रभु।
अजय अजय मौलिक, अजय मौलिक कौन है? अमोल प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। रेस्पॉन्स कर सकते हैं। अरिहंत प्रभु, बाबू राय प्रभु, गौतम कुमार प्रभु, कृतिका माता जी। अगर आप रेस्पॉन्स करते तो आप प्रेजेंट हैं, नहीं तो एब्सेंट। मीना शाह माता जी, मिठुन प्रभु, हरे नारायण कृष्ण प्रभु, प्रभु जी। नेहा सिंह, नीतीश प्रभु, प्रदीप हरे मिस्त्री, कृष्ण प्रभु। प्रवीण प्रभु, महादेव प्रभु, साक्षी माता जी, हरे कृष्ण सांबू प्रभु। प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। संदीप भौमिक, हरे कृष्ण प्रभु जी। शुभम रॉय, हरे कृष्ण प्रभु जी। शुभम रॉय, हरे हरे सौमिली कृष्ण प्रभु माता जी। जी, हरे कृष्णा। सुप्रतीक प्रभु, हरे सूरज कृष्ण प्रभु। प्रभु, सूरज शाह, हरे कृष्ण प्रभु। सूरजीत चक्रवर्ती प्रभु, वरुण भट्ट, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। और कुमकुम माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो तो आज हम लोग जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे ये जो हरि कथा श्रवण करने की कुछ हम लोग आयोजन किए हैं, जिसके द्वारा हम लोग आने वाले जो उत्सव है, बलराम जयंती, जन्माष्टमी, प्रभुपाद जी के आविर्भाव तिथि, उनको हम लोग बहुत हृदय से और उत्साह के साथ, सही चेतना के साथ हम लोग उसको मना पाएंगे और भगवान के सर्वोत्तम कृपा प्राप्त करेंगे। तो कुछ दिन पहले पुरुषोत्तम महीना गया, जिसमें हमें 1000 गुना आध्यात्मिक प्रगति का विशेष अवसर या सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब भी पुरुषोत्तम महीना खत्म हुआ, तो ये बलराम जयंती, झूलन यात्रा, आज से झूलन यात्रा की शुरुआत है, एकादशी तिथि भी है। तो बहुत ही आज के दिन अगर हम लोग भगवान की कथा सुनेंगे बलराम जी के बारे में, तो हमें कितना करोड़ गुना लाभ होगा वो पता नहीं। हालांकि मैं भगवान की कृपा से द्वारका में बैठा हुआ हूँ, और जरूर द्वारका धाम से आपको कथा सुनने का कुछ ज्यादा फल तो जरूर प्राप्त होगा। मेरे 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 मेरा कोई योग्यता नहीं है, लेकिन धाम की शक्ति है, धाम की शक्ति है, और उस धाम की कृपा आपके पास पहुंच रहा है। श्रील प्रभुपाद जी कृपा से एकादशी के तिथि के दिन उपवास शब्द का अर्थ है, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना, वास करना। तो केवल नहीं खाने से उपवास नहीं होता है। उपवास का असली अर्थ है कि भगवान के निकट वास करना। तो भगवान के निकट कैसे वास कर सकते हैं? अगर हम लोग भगवान के धाम में वास करते हैं। भगवान के निकट कैसे वास करते हैं? अगर हम लोग भगवान की कथा, भक्तों के संग में वास करते हैं। भगवान के निकट हम लोग कैसे वास कर सकते हैं? अगर हम लोग भगवान की नाम ज्यादा से ज्यादा हम लोग भगवान आश्रय लेते हैं। भगवान के निकट हम लोग कैसे वास कर सकते हैं? अगर हम लोग भगवान की सेवा में एंगेज रहते हैं। अगर हम लोग उपवास के दिन ज्यादा से ज्यादा हम लोग भक्ति और भगवान की सेवा, सत्संग का फायदा उठाते हैं, और दूसरे काम को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, और हरि कथा, सत्संग, हरि नाम, भगवान की सेवा,
शास्त्रों का अध्ययन, धामवास, इसका लाभ उठाते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है, जो आज का जो कथा है और आने वाले जो जन्माष्टमी के जो कथा का जो आयोजन किया जा रहा है, जन्माष्टमी कथा सीरीज, उसका लाभ उठाइए और इस प्रकार कृष्ण की निकट या कृष्ण की चरण कमलों का कृपा प्राप्त करिए। तो पुरुषोत्तम महीना खत्म हुआ और अभी पुरुषोत्तम भगवान का आविर्भाव के समय आ गया है। तो और इस आविर्भाव के समय अगर हम लोग उत्साहित नहीं रहेंगे, अगर हम लोग आनंदित नहीं रहेंगे, नंदो के आनंद भाइयों, जय कन्हैया लाल की, लेकिन उस आनंद कैसे प्रकाश होगा, हृदय से कैसे प्रकाश होगा? अगर हम लोग भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के स्मरण करते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, तो तभी तो हम लोग आनंदित होंगे और भगवान को आनंद के साथ स्वागत कर पाएंगे हमारे जीवन में। तो पुरुषोत्तम महीने के बाद पुरुषोत्तम भगवान का आविर्भाव हो रहा है, तो इसलिए उन आविर्भाव के बारे में हमें श्रवण करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं जन्माष्टमी के पावन अवसर पर, और भगवान कृष्ण प्रकट होने के पहले बलराम जी प्रकट होते हैं। तो कल मैं गया था द्वारकाधीश मंदिर में, तो द्वारकाधीश मंदिर के साथ मंदिर के अंदर ही बलराम जी के बहुत सुंदर मंदिर है, और बलराम जी इतनी सुंदर दिख रहे थे, इतने सुंदर नीले कपड़े पहने हुए थे, कृष्ण से ज्यादा सुंदर दिख रहे थे। तो हमें बहुत आनंद अनुभव हुआ। कृष्ण बलराम के ज्यादा विग्रह तो हम लोग दर्शन नहीं करते, बहुत कम ही दर्शन करते हैं पूरे विश्व में, और केवल बलराम जी के विग्रह भी बहुत कम है। वृंदावन में दाऊजी में बलराम जी के विग्रह है। हम लोग वृंदावन परिक्रमा के समय गए थे, और इधर मैं दर्शन किया, बलराम जी के विग्रह दर्शन किया, उसके बाद द्वारकाधीश भगवान का दर्शन किया, बहुत ही सुंदर दर्शन था। और वृंदावन में मैं कृष्ण बलराम, हमारे इस्कॉन मंदिर में कृष्ण बलराम जी का दर्शन हुआ। तो बलराम जी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। तो क्यों कृष्ण के आविर्भाव के पहले बलराम की आविर्भाव होता है, और क्यों कृष्ण के कृपा प्राप्त करने के लिए बलराम जी का कृपा प्राप्त करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि कृष्ण के कृपा प्राप्त करने के लिए बलराम जी की कृपा प्राप्त करना चाहिए, या बलराम जी के माध्यम से कृष्ण को अप्रोच करना चाहिए। ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, और इसके कारण क्या होता है, हमारा जन्माष्टमी उत्सव वो एक रिचुअल के जैसा बीत जाता है। हर साल हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं और थोड़ा सा मिठाई बांटते हैं, और थोड़ा हम लोग उपवास रखते हैं, और थोड़ा मंदिर दर्शन करते हैं, और बस इस प्रकार रिचुअल के जैसा, हर साल के जैसा रिचुअल के जैसा भगवान को मिठाई भोग लगाते, बस थोड़ा जय श्री कृष्ण बोलते हैं, और इस प्रकार हमारा दिन वैसा ही एक रिचुअल के जैसा बीत जाता है। हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में और दृढ़ नहीं बन पाते हैं, हम लोग आध्यात्मिक जीवन में और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या कृष्ण को प्राप्त करने की जो मार्ग है उसमें और ऊपर नहीं उठते हैं। तो इसलिए हमें तत्व समझना पड़ेगा कि बलराम जी का तत्व क्या है, और बलराम जी के साथ कृष्ण का संबंध क्या है, और बलराम जी की कृपा कैसे हम लोग हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं,
कि हम लोग कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सके, या किस प्रकार बलराम जी के कृपा से कृष्ण की कृपा होता है तो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत जानना जरूरी है, आध्यात्मिक जीवन के विज्ञान। हाँ, तो तब क्या होगा, हम लोग सही तरीके से हमारे आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो हम लोग थोड़ी देर पहले एक भजन गा रहे थे, हाँ, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है जो हमें हमेशा उसको गाना चाहिए या सोचना चाहिए। तो शिलो प्रभुपाद जी को पूछा था कि शिलो प्रभुपाद आपके फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो प्रभुपाद जी ने एक सॉन्ग बताया था, हरि हरि विफले जन्मो गोंगाइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भोजिया, जानिया सुनिया विश्व खाए। तो हम लोगों की स्थिति उसी प्रकार की है। हाँ, तो मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भोजिया, जानिया सुनिया विश्व मतलब विषय, इंद्रिय भोग रूपी विषय को हम लोग पान कर रहे हैं। तो भगवान को भूलकर मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवान को भूलकर पशु के जैसा जीवन जी रहे हैं। हाँ, इंद्रिय भोग के गटर में हम लोग आनंद प्राप्त कर, आनंद जैसे सुअर होता है वो नर्दमा में रहता है और उसमें आनंद लेता है, तो हम लोगों की स्थिति भी उसी प्रकार की है। तो नरोत्तम दास ठाकुर उनके भजन में गा रहे हैं, गोलो केरो प्रेमोधन हरि नाम संकीर्तन रोतिना जन्मिलो कहने ताय। गोलो करो प्रेमोधन महाप्रभु लाए हैं हम सबको बांटने के लिए, लेकिन हमें उसमें रति नहीं हो रहा है, उसमें हमें आसक्ति नहीं हो रहा है, उसमें हमें आनंद नहीं मिल रहा है, या उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। तो संसार विषानले दीवानिशी हिया जले, जुराइते ना पाइनु उपाय। दूसरे और संसार रूपी इस कारागार में हम सब लोग जल रहे हैं, अलग अलग प्रकार से दुख पा रहे हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, इकोनॉमिक अर्थनैतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, हर प्रकार से हम लोग दुख पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा बहुत कम है, क्योंकि जानिया सुनिया विश्व खाइनु, क्योंकि हम लोग इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त है, जो पशु की जैसे जीवन है। तो वे हम लोग की स्थिति है कि हम लोग दुख पा रहे हैं, भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं, संसार विषानले दीवानिशी हिया जले, दिन रात हमारे हृदय जल रहा है, जुराई इतना पाए न उपाय, और उसको बुझाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, कोई साधन नहीं मिल रहा है, बुझाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा है। जिसके पास बहुत धन है, और खोल दीजिए, वो छोटा वाला पिलो, हाँ वो, और बिछाने के लिए रनर भी है ना, काउंटर है ना, इसलिए मतलब जो कंबल, नहीं वो कुशन बड़ा है ना, ये वाला ये वाला छोटा वाला ये वाला पिलो, हाँ ये तो है वो, और बिछाने के लिए भी रनर है ना, इसकी तरह जाता है कंबल ना, कंबल ना, ये कोई बात नहीं सर। तो हम लोग की स्थिति इस प्रकार है कि हम लोग भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए गोलो केरो प्रेमोधन हरिनाम संकीर्तन रतिना जन्मिलो कहने था है, लेकिन उसमें भी रति नहीं है। क्योंकि हम लोग भौतिक सुख या भोगों के प्रति, या भौतिक जगत में जो अलग अलग प्रकार की वस्तु है हमारे पास, या हमारे शरीर है, उसके प्रति हम लोग आसक्त है। तो इसके कारण
हम लोग इसके कारण हम लोग कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कृष्ण की तरफ जाने के लिए हम लोग प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे होरी होरी विफले जन्म गोंगाइनु। तो इस प्रकार हमारे जो मनुष्य जीवन है वो व्यर्थ जा रहा है। विफले जन्म गोंगाइनु मनुष्य जन्म पैया राधा कृष्ण ना भोजिया जानिया सुनिया विश्व खाइनु। तो हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, बहुत ही कीमती है। और इस कीमती मनुष्य जीवन विषय या इंद्रिय भोग या भौतिक विषय के प्रति या हम लोग सोच रहे उससे हमें सुख मिलेगा, लेकिन एक्चुअली नहीं मिलेगा। संसार विषानले दीवानिशी हिया जले जुराइते ना पाए न उपाय। कुछ उपाय नहीं मिल रहा है, कोई साधन नहीं मिल रहा है। जो भी साधन है हमारे जो विषानल है या भौतिक जगत के संसार विषानल जो अग्नि में जल रहे हैं सब लोग, या हृदय में जो दीवानिशी हिया जले उसको बुझा नहीं पा रहे। आप पूछिए जाके जितने भी भौतिक जगत में सक्सेसफुल लोग हैं, धन के मामले में हो या स्त्री पुरुष का संबंध का सुख हो या अच्छा घर हो या बहुत सारे पद हो, उनको जाके पूछिए कि आपने तो ये प्राप्त कर लिया है, आपने तो ये प्राप्त कर लिया, आपने तो ये जीवन में अचीव कर लिया है, क्या वो आपके दुख को कम कर पाया है? क्या वो आपको सुख प्रदान कर पाया है? जितने लोग हैं उनको जाके पूछ लीजिए। हमारे आंखों के सामने उदाहरण है पाश्चात्य देश के लोग, तो उनके पास सब कुछ प्राप्त हुआ है, या आपके सामने भी बहुत सारे बुजुर्ग लोग होंगे, तो उनको जाके पूछ लीजिए क्या वो सुखी हैं वो सब चीज प्राप्त करके? क्या उनके हृदय में वो संतुष्टि है? क्या जो संसार विषानल जो है इससे मुक्त हो चुका है? कितने बड़े बड़े अमीर लोग, उनके परिवार के सिचुएशन जाके चेक करिए, और उनके बीवी बच्चे उनके साथ किस प्रकार बर्ताव करते हैं चेक कर लीजिए। बहुत ही गुने चुने लोग हैं जो भौतिक जीवन में सुखी है, और अगर सुखी है उनका कारण है कृष्ण कॉन्शियसनेस। उनका कारण है उन्होंने कुछ शास्त्र का निर्देश, धर्म का मार्ग अपने जीवन में अपनाया है, इसलिए वो सुखी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम लोग कृष्ण भक्ति को नहीं अपनाएंगे, कृष्ण भक्ति को हमारे जीवन में प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो किसी भी परिस्थिति में हम लोग क्यों ना रहे, कितना भी हमारे जीवन में हम लोग प्राप्त कर ना ले, हम लोग सुखी नहीं होंगे। हमारे जीवन के परम लक्ष्य को या जन्म मृत्यु के चक्र को छोड़ दीजिए, भौतिक जगत में भी सुखी नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमें कृष्ण भक्ति को हृदय से अपनाना चाहिए। कृष्ण भक्ति इज माई नीड। ऐसे नहीं कि प्रभु जी फोर्स करेंगे कि क्लास में आओ, तो ये हमारा जरूरत है। हमें इसको बाकी दायित्व के जैसा हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण जरूरत बोल के इसको हमारे जीवन में प्रैक्टिस करना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में कि कृष्ण भक्ति इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ ऑल लाइफ। सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है जो आत्मा को उद्धार करेगा, आत्मा को इस भव सागर से बाहर निकालेगा, और सर्वोपरि भगवान के प्रति जो प्रेम है, भगवान के साथ हमारे दिव्य संबंध जो है उसको पुनर्जागृत करेगा। हम लोग भगवान के शाश्वत धाम पे भगवान के साथ दिव्य आनंदमय जीवन प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। हमें क्या कहते हैं, हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें खटना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पूरे मेहनत हम बाहर के दुनिया में दे देंगे पढ़ाई करने के लिए और पैसा कमाने के लिए, बीवी बच्चे को खुश करने के लिए, और स्पिरिचुअल लाइफ में आके सो जाएंगे।
स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग कुछ टाइम नहीं देंगे तो रिजल्ट भी उसी प्रकार के ही मिलेंगे। हाँ, रिजल्ट भी उसी प्रकार के मिलेंगे। एक तो भौतिक जगत का जो सक्सेस है वो हमें सुख प्रदान नहीं करेगा, और दूसरा भौतिक जगत में आप बंधे पड़े रहेंगे, भौतिक जगत से आप निकल नहीं पाएंगे। हाँ, एक तो जो मिला है मेहनत करके उस आपको सुख नहीं देगा, दूसरा है और बंधन का कारण है। तो इसलिए शास्त्र कहता है श्रम एव ही केवलम, जितने भी भौतिक जगत में आगे बढ़ने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं, दिस इज यूजलेस लेबर। श्रम एव ही केवलम, केवल मेहनत, बेकार मेहनत है। तो क्योंकि वो तो सुख नहीं देगा, दूसरा है आप भोग भी नहीं कर पाएंगे, आप भोग भी नहीं कर पाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि 10 लाख रुपया कमाता है, खाएगा तो 4 रोटी, और उनको इंद्रिय भोग करने की क्षमता बाकी मनुष्य के जैसा ही है। तो इसलिए जितना आप कमाते हैं वो आप ना भोग कर पाएंगे ना ले जा पाएंगे। लेकिन क्या ले जा सकते हैं, क्या लेके जा सकते हैं, कोई बता सकता है? क्या लेके जा सकते हैं? भक्ति लेके जा सकते हैं। भक्ति आपको इस भौतिक जगत में भी सुखी करेगा, और भक्ति आपको भगवत धाम भी लेके जाएगा। तो भक्ति आपको सुख भी देगा, भक्ति आपको भगवत धाम भी लेके जाएगा। हम लोग द्वारका में हैं, तो जिस 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 होटल में हम लोग हैं, गेस्ट हाउस है, होटल के जैसा ही है। तो ये जो होटल का ओनर है, इनके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दूसरे एक भक्तों के साथ उनका रिलेशन है, और उन्होंने हमारा होटल का एकोमोडेशन स्पॉन्सर कर दिया है। बोले आप रहिए, पैसा देना नहीं पड़ेगा। और हम लोग रूम देखने के लिए आ रहे थे, तो हम लोगों का रूम, हमारा जो एकोमोडेशन का डेट है और इधर का जो होटल का जो डेट है वो मैच नहीं कर रहे हैं। मैं बोला तो हम लोग बोले थे कि आके रूम देख ले सकते हैं, तो लेकिन उन्होंने बोला डेट बताइए, तो लेकिन उस डेट में उनका ऑलरेडी बुकिंग है। तो मैं उनको बोला कि देखिए वो तो बुकिंग रहेगा, तो हम कैसे रहेंगे, आप मेरे को फ्री में रहने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन सपोज डेट मैच नहीं किया तो क्या होगा? बोले नहीं नहीं, वो साधु सेवा के हिसाब से मैं मान लूंगा। तो मैं सोच रहा था कि मेरे साथ तो कोई रिलेशन नहीं है, और मैंने कुछ रूम बुकिंग नहीं, इस्कॉन में रहोगे तो 1000 रुपया पर डे देना पड़ेगा। इस्कॉन के डिवोटीज इस्कॉन जाके रहेगा तो 1000 रुपया, कोई भी ब्रह्मचारी, और बाहर में भगवान ने मेरे को फ्री में कर दिया। तो मैं सोच रहा था कि यूं कि कृष्ण भक्त तो नहीं हूं, कृष्ण भक्ति करने की प्रयास कर रहा हूं, और हाँ, शिला प्रभुपाद जी का स्टैंप लगा हुआ है, और इसलिए भगवान ने हमें कितना कृपा कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे पास तो पॉकेट में कोई पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने इतनी करुणा कर रहे हैं, भगवान इतना दया कर रहे हैं। तो जो मैं बोलना चाह रहा था कि अगर आप कृष्ण भक्ति करेंगे तो कृष्ण भक्ति करने से इस भौतिक जगत में भी हम लोग सुखी रहेंगे, और मृत्यु के पश्चात भगवत धाम चले जाएंगे। तो भक्त लोग इधर भी एंजॉय करते हैं और अगले जीवन में भी एंजॉय करते हैं, लेकिन भौतिक जगत में कृष्ण भक्ति को हृदय से नहीं लेंगे। अगर बहुत बार लोग कृष्ण भक्ति में हैं बट दे डोंट टेक सीरियसली, तो तब क्या होता है? माया पिटाई करता है, माया उसको पिटाई करके उसको ठीक करता है। जैसे कोई मटका होता है, मटका को बेचने के पहले उसको काम में लगाने से पहले उसको कहते हैं गरम आग में उसको क्या किया जाता है? उसको जल क्या कहते हैं उसको? पकाया जाता है।
उसको पकाया जाता है, उसको पकाया जाता है, नहीं तो क्या टूट जाएगा। उसी प्रकार हाँ, अगर हम लोग कृष्ण भक्ति सीरियसली नहीं लेंगे तो कृष्ण और माया देवी के साथ टाई अप रहता है, ठीक है। टाई अप करके क्या रहता है, भक्त को पिटाई किया जाता है कि तुम इंद्रिय तृप्ति का जो इच्छा अभी भी है या इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के भोग करने की इच्छा है, उसको छोड़ दो। नहीं छोड़ता है तो ऐसे बाहर के जगत में लोग दुख पा रहे, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है, दुख पाता है उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि माया उसका बुद्धि को ढक दिया है। लेकिन भक्तों को समझ में आ जाता है, और भक्तों को समझ में आ जाता है कि ये भगवान हमें सिखा रहे हैं, ये माया हमें मैसेज दे रही है, हाँ, या भौतिक जगत हमें मैसेज दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा हमें बुद्धिमान होना चाहिए, हाँ, बुद्धिमान होना चाहिए, और हमें माया का पिटाई खाने के लिए अपेक्षा नहीं करना चाहिए। हमें वॉलेंटियरली साधु गुरु वैष्णवों के संग लेकर हमें हरि कथा श्रवण करके शास्त्रों का अध्ययन करके वॉलेंटियरली सिंसियर हो जाना चाहिए। वॉलेंटियरली भक्ति को हमें सीरियसली लेना चाहिए, भगवान की सेवा को सीरियसली लेना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को, हमारे साधना को हमारे जीवन में प्रायोरिटी देना चाहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम को हमारे जीवन में प्रायोरिटी देना चाहिए, 16 माला जप, 4 नियम पालन को हमारे जीवन में प्रायोरिटी देना चाहिए। नहीं तो कितनी भी चीज आप अचीव करें आपके जीवन में, तो वो ना तो आपको सुख प्रदान करेगा, ना कि आपको आप उसको भोग पाएंगे, और ना कि वो आपको इस भौतिक जगत के बंधन से बाहर निकालेगा। तो इसलिए कृष्ण भक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबके लिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व हम सबके लिए, जो हम लोग अगर सीरियसली करेंगे तो ये हमारा संपूर्ण रूप से फायदा है, हमारा संपूर्ण रूप से फायदा है। और उसी कारण भगवान अलग अलग युगों में आते हैं, उसी कारण भगवान उनके भक्तों को भेजते हैं, उसी कारण ये धाम का आविर्भाव भगवान अलग अलग समय में अलग अलग धाम में प्रकट हुए हैं। तो इसलिए इस बलराम पूर्णिमा और जन्माष्टमी, श्रील प्रभुपाद जी के आविर्भाव, इस समय को बहुत ही हमें सीरियसली लेना चाहिए और इसका पूर्ण फायदा उठाना चाहिए, जिसमें हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। तो इसलिए हम लोग इस 4-5 क्लासेस रखा है, जो मैक्सिमम आपके डेट में ही है, जो क्लासेस का डेट है उस डेट में ही है। तो अभी हम लोग उसको कॉमन कर दिया है कि आपका क्लास भी करिए, और जैसे संडे होता है, हमने तो कल का क्लास कैंसिल कर दिया कि लोग आज के दिन ज्यादातर संख्या में आ सके। तो इसके बाद फिर बुधवार को होगा, उसके बाद फिर सैटरडे होगा। तो अभी हम लोग श्री बलराम जी के बारे में कुछ सुनेंगे, बलराम जी के तत्व के बारे में कुछ सुनेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया कि बलराम और कृष्ण में क्या फर्क है, बलराम और कृष्ण में क्या फर्क है। तो श्रील प्रभुपाद जी के 2 शिष्य थे, एक तमाल कृष्ण महाराज और एक मेरे ख्याल से एक जमुना माता जी। तो उनके अंदर थोड़ा सा आध्यात्मिक लड़ाई हो रहा था। तो एक जन बोल रहे थे कि बलराम जी सफेद है, श्वेत वर्ण के हैं, और कृष्णा सैम वर्ण के हैं। बलराम जी नीला वस्त्र पहनते हैं और कृष्णा पीला वस्त्र पहनते हैं। बलराम जी के हाथ में हल रहता है और कृष्ण के हाथ में बांसुरी। तो अधरामृत जो हम लोग गोपी गीत में गा रहे थे या सुन रहे थे, तो और कृष्णा मयूर पुच्छ धारण करते हैं, और बलराम एक विशेष
सुंदर एक सफेद कलर के पुच्छ धारण करते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण बलराम में क्या भेद है वो चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण और बलराम के अंदर क्या भेद है। तो तब शिल प्रभुपाद जी उधर आए और शिल प्रभुपाद जी ने कहा कि वास्तविक रूप से कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है। वास्तविक रूप से कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है। तो कृष्ण और बलराम में केवल फर्क है उनके रंग का। रंग जो है कृष्ण श्याम वर्ण है और बलराम सफेद मेघ के जैसा, जो शरद ऋतु में जो बहुत सुंदर क्या कहते हैं मेघ प्रकट होता है। तो वो जो मेघ नीला आकाश में बहुत सफेद मेघ जैसा बलराम की रंग उसी प्रकार का है। तो लेकिन तत्व में बलराम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। तो कृष्ण जो है कृष्ण विष्णु तत्व है और बलराम भी विष्णु तत्व है। दोनों ही भगवान हैं। और कृष्ण आदि पुरुष है, कृष्ण स्वयं भगवान है और कृष्ण की पहला प्रकाश है बलराम। कृष्ण का पहला प्रकाश है, कृष्ण की पहला प्रकाश है बलराम। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो उधर बताया गया है कि मेरे पास चैतन्य चरितामृत नहीं है, तो उधर बताया गया है स्वयं भगवान ताहारो प्रथमो देहो ताहारो द्वितीय देहो श्री बलराम। तो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी कृष्ण, अवतारी और अवतार के स्रोत हैं अवतारी। जो सारे अवतार राम नरसिंह बराह सब लोग अवतार और कृष्ण अवतारी। तो भगवान और स्वयं भगवान। तो स्वयं भगवान जो है सारे भगवान के स्रोत है। तो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे पुरुषोत्तम मायने में, ताहारो द्वितीय देहो श्री बलराम। तो उनके द्वितीय देहो मतलब उनके पहला एक्सपेंशन है, पहला प्रकाश है बलराम। तो श्री कृष्ण अवतीर्ण ऐसे बताया गया है। और बलराम श्री कृष्ण अवतीर्ण ऐसे गौरांग महाप्रभु के रूप में, और उनके साथ आए हैं बलराम नित्यानंद, ऐसे बताया गया है। तो वही कृष्ण प्रकट हुए हैं गौरांग महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में, और बलराम प्रकट हुए हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। समझ में आ रहा है? तो कृष्ण स्वयं भगवान जो है अवतारी कृष्ण, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, चैतन्य महाप्रभु अवतारी। और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है। नित्यानंद प्रभु कोई अवतार नहीं है, बलराम जी के अवतार नहीं है, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम में कोई फर्क नहीं है। तो कृष्ण का पहला प्रकाश है बलराम से आते हैं प्रथम चतुर्भुज वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। तो ये द्वारका में रहते हैं। तो कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, बलराम वृंदावन में रहते हैं। लेकिन जब द्वारका में आते हैं तो वासुदेव कृष्ण
हाँ, और बलराम जी जो है वो संकर्षण बलराम। तो वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये पहला चतुर्भुज। और पहली चतुर्भुज से फिर आविर्भाव होता है नारायण का। पहले चतुर्भुज के संकर्षण से प्रकट होते नारायण, और नारायण से प्रकट होते दूसरा चतुर्भुज, द्वितीय चतुर्भुज, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। और ये दूसरी चतुर्भुज है, ये रहते हैं अयोध्या में, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न दूसरी चतुर्भुज है। अब दूसरे चतुर्भुजों के संकर्षण से, दूसरे चतुर्भुज के संकर्षण से प्रकट होता है काननोदशाई विष्णु, या इनको कहते महाविष्णु, जो कारण समुद्र में सोए हुए रहते हैं। और उनके नाभि कमल से नहीं, उनके रोमकूप से या उनके सांस के साथ, सांस निश्वास के साथ, निश्वास प्रश्वास के साथ अनंत कोटि ब्रह्मांड का उत्पत्ति होता है। और उस ब्रह्मांड के अंदर कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मांड के आधा को ढक देते हैं, पानी से, अपने पसीने से ढक देते हैं। और फिर उसमें भगवान गर्भोदक्षय विष्णु सोए हुए रहते हैं, और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होता है। फिर ब्रह्मा जी भगवान के आदेश के अनुसार ब्रह्मांड का सृष्टि करते हैं, ब्रह्मांड का सृजन करते हैं। और फिर गर्भोदक्षय विष्णु क्या करते हैं, क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में प्रकट होकर वो उस ब्रह्मांड के जो टॉप प्लैनेट है ब्रह्मलोक, उसमें क्षीर समुद्र में निवास करते हैं, क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। और वो क्षीरोदक्षय विष्णु सभी अणु परमाणु के अंदर परमात्मा के रूप में और सभी जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। समझ में आ रहा है? और फिर जब सृष्टि और आगे चलता है तो आत्मा पिछले सृष्टि में जहां पर उनका खत्म हुआ था, जहां पर उनके कर्म खत्म हुआ था, उसके अनुसार अलग अलग शरीर, ब्रह्मा अलग अलग शरीर सृष्टि करता है, 84 लाख प्रकार के जीव जोनी, और फिर आत्मा उसके कर्म के अनुसार अलग अलग शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से बलराम से प्रथम चतुर्भुज द्वारका में, फिर उनसे आते हैं नारायण से आते दूसरे चतुर्भुज। कहां पर दूसरे चतुर्भुज? अयोध्या में। तो दूसरे चतुर्भुज जो अयोध्या में होता है, और फिर दूसरे चतुर्भुज के संकर्षण से आते हैं पहला विष्णु, उनका नाम है कारणोदक्षय विष्णु। फिर उनसे आते हैं गर्भोदक्षय विष्णु, और फिर उनसे आते हैं क्षीरोदक्षय विष्णु। तो इस प्रकार ये जितने भी सारे अवतार का हम लोगों ने चर्चा किया है, जितने भी भगवान के अवतार के बारे में चर्चा किया है, ये सारे आते हैं बलराम से, और बलराम आते हैं कृष्ण से। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कृष्ण सभी अवतार की स्रोत है, कृष्ण सभी अवतार के स्रोत है, लेकिन ये सारे अवतार आते हैं बलराम से, और बलराम जी आते हैं कृष्ण से। तो इस प्रकार पूरा सृष्टि बलराम जी से होता है। पूरे सृष्टि जो है ये बलराम जी से होता है। या सभी विष्णु जो पुरुषावतार है, पुरुषावतार कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, ये सब भौतिक जगत के निर्माण करते हैं, और ये सभी लोग आते हैं बलराम जी से। तो इस प्रकार बलराम की पोजीशन क्या है हमें समझना चाहिए, बलराम जी के तत्व क्या है, बलराम जी के स्थिति क्या है हमें समझना चाहिए। बहुत बार हम लोग कृष्ण को बहुत वैल्यू देते हैं, कृष्ण को सम्मान करते हैं, लेकिन बलराम जी को सम्मान नहीं करते हैं, बलराम जी को बाईपास कर जाते हैं। बहुत बार हम लोग चैतन्य महाप्रभु को सम्मान करते हैं, नित्यानंद प्रभु को सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करते हैं, नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करते, जो कृष्ण को स्वीकार करते हैं, बलराम जी को स्वीकार नहीं करते हैं, वो कृष्ण की कृपा का पात्र नहीं बन पाता है, कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनके कृपा का वितरण कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु के द्वारा। उसी प्रकार कृष्ण
कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त होगा बलराम जी की कृपा के द्वारा। तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, केवल रंग अलग है, लेकिन दोनों ही स्वयं भगवान है, दोनों ही भगवान है। तो सभी अवतारगण बलराम जी से प्रकट हुए हैं और बलराम जी प्रकट हुए कृष्ण से। तो कृष्ण की पहली प्रकाश है बलराम। तो इसलिए हमें कृष्ण और बलराम की पूजा करना चाहिए, कृष्ण बलराम की आश्रय लेना चाहिए। तो अभी बलराम जी इतने सारे अवतार के स्रोत होने के बाद भी, बलराम जी स्वयं भगवान होने के बाद भी, विष्णु तत्व होने के बाद भी, कृष्ण और बलराम में कोई फर्क नहीं है, उसके बाद भी बलराम जी कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। समझ में आ रहा है? बलराम जी स्वयं भगवान होने के बाद भी, सारे सृष्टि उनसे होने के बाद भी बलराम जी कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। कैसे ना? भगवान की सेवा करने के 5 प्रकार रस है, संबंध है। आप लोगों को पता है क्या क्या? साक्षरस, दासरस, वात्सल्यरस, माधुर्यरस। 4 हलो शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस। 5 प्रकार के रस होता है। तो भगवान के जितने भी पार्षदगण हैं आध्यात्मिक जगत में, सभी लोग अलग अलग रस में भगवान की सेवा करते हैं। जैसे शांत रस में जैसे वृक्ष है, और गाय है, शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। और दास्य रस में रक्तक, पत्रक, ऐसे बहुत सारे कृष्ण की सेवक हैं जो कृष्ण की दास्य रस में कृष्ण की सेवा करते हैं। फिर सख्य रस में कृष्ण के सखागण हैं, श्रीदाम, सुबल, वसुधाम, अलग अलग भगवान के सेवक हैं, भगवान के सखा हैं, जो कृष्ण के साथ हर दिन गोचारण करने के लिए जाते हैं, कृष्ण के साथ खेलते हैं, कृष्ण के साथ सोते हैं, खाते हैं। ये सख्य रस बहुत ही मधुर है। उसके ऊपर है वात्सल्य रस, नंद यशोदा। और नंद यशोदा के कैटेगरी में जितने भी माताएं हैं, पिताएं हैं ब्रज के, सब कृष्ण को पुत्र के जैसा प्रेम करते हैं, वात्सल्य रस। तो कृष्ण उनकी इच्छा भी पूरी किए हैं। आपने वो सुना है, आपने सुना है, अरे रेखे दिले কষ্ট করে নিয়ে আসার কোনো দরকার ছিল না। আমি চলে যেতাম, আমি মেসেজ করেছিলাম আপনাকে। तो क्या बोल रहा था? सख्य रस। तो सख्य रस में कृष्ण की सखागण है जो नहीं, वात्सल्य रस में भगवान जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था, तो भगवान सभी माता, ब्रज के माता और पिताओं के साथ आदान प्रदान करने के लिए, भगवान केवल ब्रज के माता पिता नहीं, गाय और बछड़े बने भगवान, क्योंकि गौ माता की इच्छा थी कृष्ण को स्तनपान कराने का। और सभी ब्रज के माता और पिता की इच्छा थी कि कृष्ण को अपने पुत्र के जैसा, कृष्ण को पुत्र के हिसाब से प्राप्त करने का। और कृष्ण उनके इच्छा को पूरी करने के लिए ये जो ब्रह्मा जी, जो हमारे गुरु परंपरा का हेड है, उनके बुद्धि को भ्रमित कर दिया। तो हम जो गुरु हैं उनके बुद्धि को भ्रमित कर दिया। तो इस प्रकार
कृष्ण सभी के इच्छा को पूरी किए, और ये कृष्ण ही केवल कर सकते हैं, दूसरे अवतार नहीं कर सकते या नहीं करते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण सर्वाकर्षक है। कृष्ण रसराज है, कृष्ण आनंदमय है, कृष्ण पूर्णतम है। पूर्ण द्वारका में कृष्ण पूर्ण है, मथुरा में कृष्ण पूर्णतर, और वृंदावन में कृष्ण पूर्णतम। तो इसलिए हमारे उद्देश्य है कि हम लोग वृंदावन के कृष्ण की उपासना करें, और वृंदावन के बाहर जितने भी लीला हुआ है उस वृंदावन के प्रति आकर्षण को और बढ़ाने के लिए। वृंदावन के बाहर जितने भी लीला हुआ है मथुरा द्वारका में, वो लीला हुआ है कृष्ण के प्रति, कृष्ण के वृंदावन लीला, और उसमें जो विरह, कृष्ण विरह है उसको और वृद्धि करने के लिए कृष्ण उसलिए वृंदावन के बाहर चले जाते हैं, और उसमें वृंदावन के लोग कृष्ण के विरह अनुभव करते हैं, और वृंदावन के बाहर के भक्त लोग कृष्ण के वृंदावन लीला के बारे में सुनते हैं या जानते हैं, और उस तरह कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण वात्सल्य रस में कृष्ण के माता पिता और ब्रज के माता पिता कृष्ण को पुत्र के हिसाब से प्रेम करते हैं, और माधुर्य रस में राधा रानी गोपिया कृष्ण को अपने प्रेमिक के रूप में, द्वारका में कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करते हैं। लेकिन अनंत शेष भगवान को आनंद प्रदान करते हैं, और उनके अनंत फन से वो भगवान विष्णु, भगवान नारायण का गुणगान करते हैं। तो इस प्रकार शांत रस में बलराम कृष्ण की सेवा करते हैं। दास्य रस में बलराम जी क्या करते हैं, जब कृष्ण भगवान गोचारण करने के लिए जाते हैं, बहुत बार कृष्ण थक जाते हैं या उनके पैर में बहुत कष्ट होता है, तो तब क्या होता है, बलराम जी के किसी सखा के गोद में कृष्ण अपना सर देके कृष्ण विश्राम करते हैं, और फिर बलराम जी क्या करते हैं, कृष्ण की पैर दबाते हैं, कृष्ण की चरणों की सेवा करते हैं। कृष्ण के पैर में अगर कुछ कांटे चुभ जाते तो उसको निकालते हैं। इस प्रकार बलराम जी का मूड है सर्वेंट, सेवा मूड है, कृष्ण को संतुष्ट करना, कृष्ण की इच्छा को पूरी करे। तो और फिर दास्य सख्य रस में बलराम जी तो कृष्ण के बड़े भाई हैं, और उनका उम्र का कितना डिस्टेंस, कितना दिन का बड़े छोटे हैं, कितने दिन के कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? 1 साल 7 days। तो जिस साल बलराम जी प्रकट होते हैं उसी साल कृष्ण का जन्म होता है। तो इससे समझ सकते हैं कि वसुदेव और देवकी ने जो कृष्ण बलराम का पैदा किया, इस भौतिक जगत में स्त्री पुरुष का संबंध में जैसे बच्चा का जन्म होता है वैसा जन्म नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? जैसे भौतिक जगत में पुरुष के वीर जैसे पत्नी बच्चे को जन्म देती है, तो कृष्ण बलराम का, हालांकि वो एक साधारण बालक के रूप में लीला कर रहे हैं, लेकिन फिर
फिर भी वो साधारण बालक नहीं है। वही हम लोग वेडनेसडे क्लास में चर्चा कर रहे थे। चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय में बोला कि काम शत्रु है सबसे, और फिर अंत में भगवान ने कहा कि इसको, शत्रु को दमन करने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान से उसको आप विजय प्राप्त कर सकते। लेकिन वो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है ना, भगवान के आविर्भाव के रहस्य। और वही चौथे अध्याय के पहले 11 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, और उसके बारे में भगवान बताते हैं 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। तो उसमें भगवान अपने आविर्भाव के रहस्य, उनके आविर्भाव किस प्रकार दिव्य है, भौतिक जगत के मनुष्य के जैसा नहीं है, स्त्री पुरुष के जैसा नहीं है, एक जीव के जैसा नहीं है, वो भगवान चौथे अध्याय के शुरुआत में बता रहे हैं। और भगवान बोल रहे कि मेरी जन्म कर्म दिव्य है, और जो व्यक्ति जिसको जानेंगे, एवं जो व्यक्ति तत्व रूप से जो जानेंगे, इसलिए हम उसका लेक्चर का टाइटल है बलराम तत्व। इस तत्व को, इस सत्य को हमें समझना पड़ेगा। इस विज्ञान को अगर हम समझना पड़ेगा, समझेंगे तो क्या होगा, त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति, शरीर छोड़ने के बाद आपको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो जन्माष्टमी उत्सव आ रहा है, बलराम पूर्णिमा उत्सव आ रहा है, इस उत्सव में अगर आप हरि कथा सुनेंगे, इसके द्वारा आप भगवधाम चले जाएंगे। हरि बोल। वो कृष्ण गीता में प्रतिश्रुति दे रहे हैं 4.9 में। त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। मामेति मतलब मेरे पास वापस आ जाएगा। नैति मामेति अर्जुन। तो इसलिए जो हम लोग हरि कथा सुन रहे हैं, इसमें बहुत लाभ है। तो वीतराग भय क्रोध मन मन माम उपाश्रिता, इस प्रकार बहुबो ज्ञानो तपसा, बहुबो, बहुत लोग, बहुबो ज्ञानो तपसा, बहुत लोग इस ज्ञान को प्राप्त करके, कृष्ण बोल रहे हैं 9.10 में, सॉरी 4.10 में। तो भगवान बोल रहे हैं बहुबो ज्ञानो तपसा पूतो, पूतो मतलब पवित्र हो चुके हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करके बहुत लोग पवित्र होकर मद भावमागता, मेरे धाम में वापस आ गए, मेरे भाव को प्राप्त किया है। तो इसलिए कोई बराबरी करके क्या कहते हैं, एक्सैजरेशन नहीं है। दिस इज द फैक्ट, कृष्ण हैज प्रॉमिस्ड, भागवत गीता इज सेइंग। तो बहुत लोग, कृष्ण बोल रहे हैं कि बीतो राग भय क्रोध, इस प्रकार राग माने अटैचमेंट, भय और क्रोध, इससे मुक्त होकर बहुत लोग इस ज्ञान प्राप्त करके पवित्र हुए, और पवित्र होकर वो कहां गए, पूतो मद भावमागता, खोल के देख सकते हैं। तो पूतो मद भावमागता, मेरे धाम में वापस आ गए हैं। तो इस प्रकार ये जो कृष्ण तत्व, विष्णु तत्व, बलराम तत्व, इसको समझना बहुत जरूरी है। और यही जीव का जीवन का उद्देश्य है। जीवस्व तत्व जिज्ञासा नार्थो जस्म कर्म भी, हर जीव को तत्व जिज्ञासा करना चाहिए। कौन सा तत्व, मानी तत्व या भोग तत्व, ये सब तत्व के बारे में हम लोग पूछते हैं। अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटीज में इसके बारे में पढ़ाई कराया जाता है। और प्रहलाद महाराज इज नॉट इंटरेस्टेड टू हियर ऑल दिस सब्जेक्ट मैटर। प्रहलाद महाराज कृष्ण के बारे में सुनना चाह रहे थे। प्रहलाद महाराज नारद मुनि से श्रवण किए थे। तो ये जो क्वालिटी, जो क्या कहते हैं, भाग्यवान व्यक्ति हैं, फॉर्चुनेट सोल, वो कृष्ण तत्व श्रवण करते हैं, वो कृष्ण तत्व का अनुसंधान करते हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, भक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान के भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो बलराम जी सब दास्य रस में कृष्ण की चरण कमलों की सेवा करते हैं। सख रस में बलराम जी कृष्ण के सखा के रूप में हर दिन कृष्ण के साथ गोचारण करने के लिए जाते हैं। तो कृष्ण और बलराम में जो उम्र का फर्क है केवल 7 दिन का,
केवल 7 दिन का, उसके बारे में हम लोग अगले अगले क्लास में सुनेंगे कि कैसे बलराम का आविर्भाव हुआ। और बहुत ही अगला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृष्ण आविर्भाव होने के पहले बलराम क्यों आविर्भाव होते हैं? कृष्ण आविर्भाव होने से पहले देवकी के 6 पुत्र का निधन या मृत्यु क्यों होता है? क्या एक लीला है ना? इसमें कुछ तत्व है, इसमें कुछ लेसन है। तो ये हम लोग अगले अगले वीक में हम लोग सुनेंगे। तो इसलिए अगला क्लास जो होगा बुधवार को होगा शाम को। आप लोग मिस मत करिए। बाई चांस अगर मैं ट्रेन में रहता हूं तो चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, तो नहीं तो मोटा मोटी बुधवार ही होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें जानना बलराम जी के बारे में, बलराम के आविर्भाव के बारे में। तो बलराम इस साल प्रकट हुआ, उसी साल कृष्ण का आविर्भाव हुआ। तो स्त्री पुरुष शारीरिक संबंध के द्वारा हुआ। तो कृष्ण साख्य रस में बलराम जी कृष्ण के सखा के रूप में हर दिन जाते हैं। 7 दिन का संबंध तो मित्र के जैसा ही है। तो कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण के साथ पिकनिक मनाते हैं, कृष्ण के साथ खेल कूद करते हैं। और फिर वात्सल्य रस में कृष्ण बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई के जैसे कृष्ण की देखभाल करते, देख रेख करते हैं। तो एक बार क्या हुआ था, जब कृष्ण और बलराम गोचारण करने के लिए पहले वो लोग बछड़े को देखभाल करते थे। और जब कृष्ण की उम्र 5 साल हो गया तो कृष्ण ने कहा कि हे मेरे पिताश्री, अभी हमारा उम्र 5 साल हो गया, हम लोग अभी गाय का देखभाल करना चाहते हैं। तो अभी बछड़े क्या होता है, नजदीक रहता है, नजदीक चरता है, लेकिन गाय क्या होता है, एक वन से दूसरा वन, दूसरे वन से तीसरे वन, तो वो जाता है और बड़े बड़े जो गोप हैं उनका देखभाल देख रेख करते थे। तो अभी कृष्ण को अगर गाय चराने की दायित्व दिया जाए तो कृष्ण को क्या करना पड़ेगा, दूर दूर जाना पड़ेगा। और वृंदावन के वन में, पहाड़ में, उसमें बहुत सारे कंकर होता है, कांटे होते हैं, कृष्ण की चरण कमल में चुभेगा। और पहले से ही क्या कहते हैं, कंस अलग अलग प्रकार के असुर भेजता था। तो इसलिए नंद महाराज यशोदा माई एक किसी भी तरीके से राजी नहीं था कि कृष्ण को वो सेवा मिले, वो दायित्व मिले, कृष्ण गोचारण करने के लिए जाए। तो लेकिन नंद महाराज ने मना कर दिया, यशोदा माई ने मना कर दिया। तो अभी कृष्ण नंद महाराज के पास बार बार आके कृष्ण फोर्स कर रहे हैं कि देखिए हम लोग तो वैश्य हैं और हमारा धर्म है गो माता की सेवा करना, हम लोग गायों की सेवक है। तो अभी मेरा उम्र 5 साल हो गया है, तो अभी हमें गोचारण करने की दायित्व दीजिए। तो नंद महाराज, यशोदा माई कह रही है, अरे आप इतने छोटे छोटे हो, और आपके चरण पैर इतने छोटे छोटे हैं, इतने कोमल हैं, आप कैसे जाओगे? और बहुत सारे असुर आक्रमण करते हैं, कौन आपको रक्षा करेगा? तो लेकिन कृष्णा छोड़ नहीं रहे, नहीं हमें जाना है, हमें हमारा धर्म को पालन करना है। अभी हम लोग बड़े हो गए हैं, अभी हमारा उम्र 5 साल हो गया है। तो पौगंड, 5 साल का कृष्ण का ये होता है, उसको एक शैशव, पौगंडो, कौमार, ऐसा अलग अलग नाम है। तो जब कृष्ण बार बार क्या कहते हैं, नंद महाराज को बार बार फोर्स कर रहे हैं, तब नंद महाराज ने कहा ठीक है, मैं बुजुर्गों से क्या कहते हैं, चर्चा करता हूँ। तो फिर नंद महाराज ने एक मीटिंग बुलाया और उनके सारे भाई लोग, नंद महाराज लोग 5 भाई थे,
और ब्रज के सीनियर लोग थे, वो लोग आके चर्चा किए। तो सभी लोगों ने मना कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति, नंद महाराज के जो बड़े भाई थे, उनका नाम था नंद महाराज के बड़े भाई का नाम है उपानंद शायद। उपानंद ने कहा कि एक शर्त पर नंद महाराज नंद जी आप कृष्ण को गोचारण करने का दायित्व दे सकते हैं। बोले क्या? बोले अगर बलराम जी उनके साथ जाएंगे। तो जब बलराम की आविर्भाव हुआ था तब गर्ग मुनि आए थे, और गर्ग मुनि आकर उन्होंने बलराम जी के नामकरण किया था। तो नामकरण किया था तो उन्होंने कहा था ये जो पुत्र है ये बहुत बलशाली होगा, बहुत बलशाली होंगे, और सभी विपद से ब्रज को रक्षा करेंगे और सभी ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करेंगे, क्योंकि वो बहुत बलशाली होंगे और क्लोज द डोर, और बहुत ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करेंगे, तो इसलिए नाम होगा उनका बल राम। राम मतलब आनंद, जो आनंद प्रदान करते हैं, बल मतलब शक्ति। तो प्रभुपाद जी का लेक्चर होगा, देखिए बलराम जी के ऊपर। तो प्रभुपाद जी उधर कहते हैं बल मीन्स स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, सो वी कैनॉट प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ, द कंडीशन सोल कैनॉट प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ विदाउट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। बद्ध जीव आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन नहीं कर सकता है आध्यात्मिक शक्ति के बिना, और वो आध्यात्मिक शक्ति आता है बलराम जी से। आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है बलराम जी से। और एक जगह में प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान को तलवार के साथ तुलना किया गया है। प्रभुपाद जी की किताब है शोर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तलवार, लेकिन उस तलवार को उठाने के लिए ताकत चाहिए। आज से 100 साल पहले जो राजा लोग थे उनका तलवार जाके देखिएगा, आप उठा ही नहीं पाएंगे, और लोग ऐसे ऐसे करके मार देता था जैसे कोई खिलौना को घुमा रहा है। लेकिन आप जाएंगे, उसका तलवार जो है 10 किलो 20 किलो का या उससे ज्यादा होगा। तो इसलिए तलवार को उठाने की क्षमता चाहिए। वो जो क्षमता है ज्ञान रूपी तलवार को उठाने का, बहुत बार हम लोग सुनते लेकिन लाइफ में उतार नहीं पाते हैं। बहुत बार लोगों को पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन हमारे अनुभव नहीं होता है। बहुत बार हमें पता है कि 4 नियमों को पालन करना चाहिए, पाप कर्मों को छोड़ना चाहिए, लेकिन लोग अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाता है, फॉलो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसको अप्लाई करने के लिए शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति कहां से मिलता है? शक्ति आता है बलराम जी से। तो बलराम आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। तो अभी हमें कृष्ण भक्ति करना है, बट हाउ कैन वी प्रैक्टिस कृष्ण भक्ति विदाउट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ? दैट स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम बलराम। तो इसलिए कृष्ण को अप्रोच करने से पहले बलराम को अप्रोच करिए। और बलराम की प्रतिनिधि कौन है? श्री गुरुदेव। बलराम आदि गुरु हैं। तो ये 5 रस से भगवान की सेवा करके सिखा रहे हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो गुरु का वही कार्य होता है। गुरु का कार्य वो होता है कि शिष्य को सिखाए या भक्त को सिखाए कैसे कृष्ण की सेवा करना चाहिए, कैसे हम लोग कृष्ण की दास हैं। तो इस प्रकार गुरु शिष्य को ट्रेनिंग देते हैं। बलराम जी हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, और बलराम जी के प्रतिनिधि गुरुदेव, गुरु कृष्ण रूप है शास्त्र प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे। तो गुरु के द्वारा कृष्ण कृपा करते हैं। तो आचार्य माम बीजानिहा ना भी मान्य तो कोरिचित, आचार्य माम, आचार्य से मेरे से अभिन्न मानिए, न मर्त बुद्ध श्रूय। तो हम लोग इधर चर्चा कर रहे थे, क्या बोलते हैं, हमारे जो 15 अगस्त का प्रोग्राम हुआ था, तो मनोशिक्षा में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो गुरु गोष्ठे गोष्ठालयशु, तो श्रीनामनी, तो गुरु, बहुत ही गुरु की स्मरण करना चाहिए। तो और फिर वृंदावन धाम की स्मरण करना चाहिए, वृंदावन वासियों का स्मरण करना चाहिए, इष्ट मंत्र का स्मरण करना चाहिए, हरिनाम का स्मरण करना चाहिए, ब्राह्मण को स्मरण करना चाहिए, वैष्णव को स्मरण करना चाहिए, राधा कृष्ण की जुगल भजन का स्मरण करना चाहिए। लेकिन ये सारे शक्ति प्राप्त होता है हमारे श्री गुरुदेव की कृपा से। तो इस प्रकार गुरु
बलराम जी के प्रतिनिधित्व करते हैं, और जिस प्रकार बलराम जी सिखा रहे हैं सेवक भगवान के रूप में, कृष्ण सेव्य भगवान, बलराम सेवक भगवान। हाँ, तो इसलिए बलराम जी सिखा रहे, कितना भी आप ऊपर क्यों ना चले जाओ, हमेशा हम लोग दासी है। अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, जारे जो इच्छे ना चाहे से तो इच्छे करे नृत्य। अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, तो बलराम जी स्वयं भगवान है, लेकिन भृत्य के रूप में सिखा रहे हैं, सेवक के रूप में सिखा रहे हैं कैसे हमें कृष्ण की सेवा करना चाहिए। तो इस प्रकार जो बल शब्द, बल शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति बलराम से प्राप्त होता है, आध्यात्मिक शक्ति गुरु से प्राप्त होता है। तो इसलिए गुरु, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छे शिष्य बनना बहुत जरूरी है। गुरु के शासन मानना बहुत जरूरी है। गुरु के शासन मानेंगे तो क्या होगा, डिसिप्लिन होंगे। गुरु के शासन मानेंगे तो क्या होगा, डिसिप्लिन होंगे, डिसिप्लिन होंगे तो शक्ति मिलेगा। तो शक्ति बिना डिसिप्लिन होके नहीं मिल सकता। हम कुछ दिन पहले एक लेक्चर सुन रहे थे सुंदर गोपाल प्रभु का, सुंदर गोपाल प्रभु का लेक्चर सुन रहे थे। तो उसमें बोल रहे थे, प्रभु जी बोल रहे थे कि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। आध्यात्मिक प्रगति के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन का शुरुआत कहां से होता है, डिसिप्लिन का शुरुआत होता है ओबीडियंस से। ओबीडियंस नहीं होंगे तो हम लोग हमारे मन और इंद्रियों को संयम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग डिसिप्लिन बनने के लिए प्रयास करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन होने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं आएगा। डिसिप्लिन अपने मन को, क्योंकि डिसिप्लिन इज नॉट सम ग्रॉस थिंग, डिसिप्लिन केवल बाहरी भौतिक जड़ इंद्रियों का विषय नहीं है, डिसिप्लिन सेटल है। तो और वो डिसिप्लिन होता है ओबीडियंस से। तो जब हम लोग गुरु और वैष्णव या हमारे जो स्पिरिचुअल अथॉरिटीज हैं, इवन मैटेरियल अथॉरिटी के पास भी हमें ओबीडियंट होना चाहिए। हाँ, विशेष करके वो अगर आध्यात्मिक प्रगति के प्रतिकूल नहीं होते हैं। प्रतिकूल होते तो थोड़ा हमें देखना चाहिए क्या करना चाहिए उस स्थिति में। लेकिन अगर अनुकूल होते तो हमें डिसओबीडियंट नहीं, क्या कहते हैं, हमें डिसओबे नहीं करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि डिसिप्लिन आता है ओबीडियंस से। तो इसलिए ये जो गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप है, अथॉरिटी सबऑर्डिनेट, जो गुरु हमारे अथॉरिटीज हैं, वैष्णव सीनियर डिवोटीज, प्योर डिवोटीज हैं हमारे अथॉरिटीज हैं, या हमारे सर्विस अथॉरिटी होते हैं, हमारे स्पिरिचुअल अथॉरिटीज होते हैं। तो हमें उनके आदेशों को पालन करना चाहिए या उनके प्रति ओबीडियंस होना चाहिए। हमें बाईपास नहीं करना चाहिए। तो बाईपास करेंगे तो क्या होगा, हम लोग अपने इंद्रियों को संयम नहीं कर पाएंगे, हम लोग डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन आएगा ओबीडियंस से, अकाउंटेबिलिटी से, अकाउंटेबिलिटी, ओबीडियंस। सो दिस इज, एंड जब आप ये तीनों चीज करेंगे, अकाउंटेबिलिटी, ओबीडियंस एंड डिसिप्लिन, तब क्या बनेगा, तब कैरेक्टर बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब क्या होगा, कैरेक्टर बनेगा, या हमारे इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हमारे जो चरित्र हैं और चरित्र के जो अलग अलग प्रकार के जो विषय हैं, अलग अलग प्रकार के जो एस्पेक्ट हैं, वो मैनिफेस्ट करेगा। तो जब गुरु, इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ का सभी प्रगति गुरु के कृपा के ऊपर, गुरु के प्रति ओबीडियंस के ऊपर, गुरु के प्रति अकाउंटेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए बलराम जी, और बलराम जी के जो प्रतिनिधि है श्री गुरुदेव, उनके कृपा, उनके साथ हमारा संबंध जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते, जसो देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु। जिस प्रकार भक्ति कृष्ण के प्रति है, उसी प्रकार भक्ति गुरु के प्रति होना चाहिए, तभी शास्त्रों के सारे सिद्धांत तो आपके निकट प्रकट होगा। जितने भी लोग आध्यात्मिक जीवन में सक्सेसफुल हुआ है, उन्होंने गुरु को संतुष्ट किया है, नहीं तो सक्सेसफुल होने का कोई क्वेश्चन नहीं है। श्रील प्रभुपाद उनके गुरु को प्रसन्न किए हैं,
हाँ, और हमारे गुरु वर्ग लोग देखिए, इस्कॉन के जो गुरु वर्ग हैं, हमारे गुरु महाराज लोग हैं, देखिए वो लोग किस प्रकार श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हाँ, और हम लोग देखते हैं किस किस प्रकार इस्कॉन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ वन प्रिंसिपल, सेटिस्फाइंग स्पिरिचुअल मास्टर, जश प्रसादात भगवत प्रसादो। ये आध्यात्मिक जीवन के फाउंडेशन है, और इस फाउंडेशन के ऊपर ही पूरे भक्ति का वृक्ष खड़ा रहेगा। आपके आध्यात्मिक जीवन के जो शक्ति वो आपको मिलेगा। तो इसलिए गुरु और बलराम, हाँ, और वैष्णवों की कृपा इवन कृष्ण की कृपा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कृष्ण की कृपा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें हमेशा रघुनाथ दास गोस्वामी के शिक्षा के अनुसार हमेशा इसको स्मरण करना चाहिए। गुरु के आदेश, तदादेश सदा स्मरी, हाँ, तदादेश सदा स्मरी, तो उनके आदेशों को स्मरण करना चाहिए, वो हमारे बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार अपने मन और इंद्रिय को समो दमो, समो मतलब एक्सटर्नल सेंसेस, दमो मतलब इंटरनल सेंसेस, इसको हमें संयम करना चाहिए, या इसको हमें कृष्ण की सेवा पर लगाना चाहिए। तो इस प्रकार बलराम जी, हाँ, बलराम जी जो है शक्ति प्रदान करते हैं। तो और उस शक्ति के द्वारा ही हम लोग आध्यात्मिक जीवन के गाड़ी को चला पाएंगे। भक्ति मतलब प्रभुपाद जी कहते स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स वॉर अगेंस्ट माया। तो माया के खिलाफ युद्ध करने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत प्राप्त होगा बलराम जी से, ताकत प्राप्त होगा गुरु से। कल एक भक्त मेरे को फोन किया था कि प्रभु जी मैं क्लास में आना बंद कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया, मेरा भक्ति जीवन डाउन हो गया। तो मेरा ऐसा कोई इच्छा नहीं है कि मैं किसी के साथ कनेक्शन कम कर दूंगा और वो भक्ति में डाउन हो जाएगा। लेकिन ये प्रिंसिपल है, मैं हूं या कोई भी दूसरे डिवोटी हो, अगर हम लोग गुरु वैष्णव या भक्तों के साथ हमारा संबंध प्रॉपर नहीं है तो हम लोग आध्यात्मिक जीवन में वीकनेस फील करेंगे। तो इसलिए संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम लोग अचीवमेंट के बारे में सोचते हैं, हमारे जीवन में ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, और उसके कारण क्या होता है, हम लोग रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और उसके कारण क्या होता है, हम लोग स्पिरिचुअली वीक हो जाते हैं। तो इसलिए अचीवमेंट हमारे एक शास्त्र के अनुसार, आचार्य के अनुसार हमें कुछ अचीव करना चाहिए जरूर, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे रिलेशनशिप, भक्तों के साथ हमारा संबंध, गुरु के साथ हमारा संबंध, पूर्वतन आचार्यों के साथ हमारा संबंध है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको हमें प्रायोरिटी देना चाहिए। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या अगर हम लोग सफल होकर भी हम्बल रहना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के बाद भी, बहुत उच्च पद पर चले जाने के बाद भी अगर हम लोग विनयी रहना चाहते हैं, तो हमें जो अनर्थ है, लास्ट, एंगर, ग्रीड, और हमारे हृदय में जो मिथ्या अहंकार है, उसके परे जाना ही पड़ेगा। उसके परे नहीं जाएंगे तो आप उसके द्वारा जब आपको सफलता मिलेगा, ये सब चीज अटैक करेगा, इसका परीक्षा होगा, और उस परीक्षा में आप फेल कर जाएंगे। तो इसलिए उस परीक्षा में पास करने के लिए, अगर सफल होने के बाद भी आप सफल रहे, एक तो बाहरी सफलता और दूसरा अंदर ही सफलता, तो अंदर ही सफलता में पास करने के लिए हमें गुरु के अनुगत्य चाहिए, हमें गुरु की कृपा चाहिए, और हमें डिसिप्लिन, और हमें अकाउंटेबल और ओबीडियंट बनना है। ओबीडियंस और अकाउंटेबल से डिसिप्लिन आएगा, और डिसिप्लिन से क्या होगा, कैरेक्टर बनेगा, और कैरेक्टर बनेगा तो हम लोग ट्रस्ट वर्दी सर्वेंट बन पाएंगे। इसको कहते हैं ट्रस्ट वर्दी सर्वेंट, फेथफुल सर्वेंट, वो कृष्ण की कृपा का पात्र बनेगा। तो हमारे एक्सटर्नल डेवलपमेंट के साथ साथ, एक्सटर्नल चीज को सही करने के साथ साथ, अच्छा तिलक लगाना, अच्छा धोती पहनना, पेजेंट लगाना, और 16 माला कंप्लीट करना, लेकिन इसको तो करना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये सारा चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो फिर क्या होगा, हम लोग इंटरनली डिवोटी बनेंगे, और तब क्या होगा, माया आपको धोखा नहीं दे पाएगा।
माया परीक्षा करेगा, लेकिन परीक्षा में आप पास कर जाएंगे अगर गुरु के दिया हुआ मार्ग पे चलेंगे। गुरु के दिया हुआ जो परीक्षा है उसमें आप पास कर जाएंगे। तो तब क्या होगा, हम लोग मन और इंद्रियों के जिस मन और इंद्रियों के द्वारा जो हम लोग इस अलग अलग प्रकार के वेग है, उसको हम लोग धीरे धीरे हम लोग गुरु के कृपा से, वैष्णव